एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਆ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣਾ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹਿ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤੇ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰਿਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਏ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ, ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾਟ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते तूप देश, केते इंद चंद सूर केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिधा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लो, करै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लो अलो आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। चोरी ना टूटे चोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, मूलालन स्यों पीत बनी, मूलालन स्यों पीत बनी, तोरी ना टूटे चोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, मूलालन स्यों पीत बनी, मूलालन स्यों पीत बनी, तोरी ना टूटे चोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, मूलालन स्यों पीत बनी, मूलालन स्यों पीत बनी। दिन सुरैन मन माहे बसत है, दिन सुरैन मन माहे बसत है, तू कर कृपा प्रभ अपनी, 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 तोरी ना टूटे चोरी ना छूटे, ऐसी माधो खिंचतनी, मूलालन स्यों पीत बनी, मूलालन स्यों पीत बनी, तोरी ना टूटे चोरी ना
ऐसी माधो किंचितनी मूलालन स्यों प्रीत बनी मूलालन स्यों प्रीत बनी बाल बाल जाऊं श्याम सुंदर को बाल बाल जाऊं श्याम सुंदर को अकथ कथा जाकी बात सुनी 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 तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मूलालन स्यों प्रीत बनी मूलालन स्यों प्रीत बनी तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो किंचितनी मूलालन स्यों प्रीत बनी मूलालन स्यों प्रीत बनी जन नानक दासन दास कहियत है जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी 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 तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मूलालन स्यों प्रीत बनी मूलालन स्यों प्रीत बनी तोरी न टूटे छोरी न छूटे ऐसी माधो खिंचतनी मूलालन स्यों प्रीत बनी मूलालन स्यों प्रीत बनी मूलालन स्यों प्रीत बनी मन अपने ते बुरा मिटाना मन अपने ते बुरा मिटाना मन अपने ते बुरा मिटाना मन अपने ते बुरा
बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाहौर शहर, उसमें बसने वाला एक वैद्य। ऐतिहासिक घटना है। लाहौर शहर, उसमें बसने वाला एक वैद्य, डॉक्टर। बहुत नाम है उसका। लिखा है कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई सुख ऐसा नहीं जो उसके पास नहीं। घर वाली कहना मानने वाली, घर में कोई क्लेश नहीं, बच्चे भी बड़े लायक हैं। डॉक्टर है, वैद्य है, लोग सत्कार करते हैं। अगर कहीं जाता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ है जो एक आदमी के पास हो सकता है, हर सुख है, पर फिर भी मन को शांति नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो किसी ने रास्ता बताया वो अपनाया, तो खालीपन लगता है, कुछ शांति नहीं है मन को, सब कुछ होते हुए भी। जो जिसने बताया वो किया, विधियां अपनाई, पर मन शांत नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मित्र मिला जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने दिल का हाल बताया कि सब कुछ है मेरे पास, संसार में जो हो सकता है किसी के पास, पर फिर भी मन उदास है, शांति नहीं है मन में। कारण क्या है? वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख कहने लगा, मैं तो नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु बता सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए तो चल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वैद्य चल पड़ा, प्रोग्राम बनाया और चल पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, मन को शांति मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। माथा टेका, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अपने मन की सारी व्यथा बताई कि पातशाह मेरे पास सब कुछ है, पर मन शांत नहीं, खालीपन सा लगता है, उदासी सी लगती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, मन अशांत होने का, सब कुछ होने के बाद एक ही कारण होता है, एक ही कारण। ये सारा ज्ञान हमारे लिए है साथ संगत, ये ध्यान से गुरु मेहर करे, ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ वचन किए, जब तक किसी के लिए बुरा सोचेंगे मन शांत नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गंभीर हो गया, चुप हो गया। वो वैद्य कहने लगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सवाल किया, क्या कुछ और भी करते हो मन को शांत करने के लिए? कहने लगा, हाँ, अष्टांग योग करता हूं, उसमें मैंने सिद्धि प्राप्त की है। अष्टांग योग, एक ऋषि हुए हैं पतंजलि ऋषि, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन्होंने इस योग को क्रिएट किया था, जिन्होंने इस योग को खोजा था। इस योग में जाते ही आदमी शून्य में चला जाता है, जो ये योग सीख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि तूने अष्टांग योग को सिद्ध किया है, तो इसमें क्या होता है, तुझे क्या अनुभव हुआ इसमें? कहने लगा, जब मैं योग साधना करता हूं तो समाधि में लीन हो जाता हूं। समाधि में जब तक लीन रहता हूं तब तक तो मन शांत है, और जैसे समाधि से उठा मन फिर वैसा का वैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका लाभ है इस योग का, पर तब तक जब तक समाधि में लीन है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए साथ संगत जी। कहने लगे, पहाड़ों में 5-5 हजार सालों से सिद्ध बैठे हैं, 5-5 हजार साल उम्र है जिनकी, श्वास चढ़ाकर बैठे हैं। संतोखा ऋषि लाखों साल तक
युगों तक धरती में दबा रहा श्वास ऊपर चढ़ाकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस योग में जब तक साधना में है, समाधि में, तब तक शांति है, क्योंकि शून्य हो गया, ब्लैंक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फुरना नहीं रहता, पर जैसे ही समाधि खुली फिर वही दुनिया, वही ख्याल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वैद्य कहने लगा इसलिए तो आपके पास आया हूं, समाधि में होने के बावजूद भी मन को चैन नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फिर से वही सवाल दोहराया, किसी का बुरा तो नहीं किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैद्य कहने लगा नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ज्ञान दिया कि एक इंसान दूसरे इंसान के 5 तरह से हानि कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 तरह से हानि कर सकता है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं। 5 तरह से। एक, बौद्धिक तल पर, मांत्रिक तल पर, बौद्धिक, मांत्रिक, शारीरिक, 5 तरह के लिखे हुए हैं। मानसिक, मांत्रिक, बौद्धिक, वाचक, शारीरिक। इसको ध्यान से समझेगा। मानसिक, किसी के बारे में बुरा सोचते रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हाथ से नहीं कर रहा पर सोच रहा है किसी के बारे में बुरा। कहते हैं ये भी जब तक ये है मन में, किसी का बुरा हो जाए, किसी का भी, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा, मांत्रिक, किसी मंत्र की सिद्धि कर ली, अब उस मंत्र की सहायता से किसी न किसी का बुरा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हो गई मांत्रिक, किसी के बारे का बुरा करना किसी का। तीसरा, बौद्धिक। बौद्धिक तल पर आज के जमाने में सबसे ज्यादा बुराई होती है। बौद्धिक किसे कहते हैं? ज्ञान हो गया, अब ज्ञान से दूसरों की बुराई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी किताबें लिखना, ऐसे वचन निकालने मुंह से। आजकल तो मीडिया हर एक के पास है, कुछ भी बोल के डाल दे, लोगों को भटका देना। बौद्धिक तल पर इंटेलेक्चुअल है, पर उसका काम क्या है? लोगों को भटकाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें खुशी मिलती है उसे। उसे कौन? हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि बौद्धिक तल पर किसी का बुरा करना, 5 तरह के बुरा कर सकते हैं एक आदमी दूसरे का। मानसिक, मांत्रिक, बौद्धिक, वाचक, बोलकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को हर्ट कर कर ऐसे लफ्ज बोलने किसी का दिल दुख जाए, किसी का बुरा हो गया। और शारीरिक, हाथ उठाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ वचन किए, जब तक ये 5 तरहों में से एक भी बुरा हो रहा है किसी से, ध्यान देना साथ संगत जी, ये हमारे लिए बहुत विशेष है आज। अगर हम हाथ से बुरा नहीं करते, मन से तो सोचते ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो ये चारों हम नहीं करते हैं, वाचक भी नहीं करते हैं, बौद्धिक भी नहीं करते, मांत्रिक भी नहीं करते, शारीरिक भी नहीं करते, मानसिक तो हर कोई करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाचक भी हर कोई करता है, बोलकर तो करता ही है। मानसिक तो हर कोई करता है। मानसिक, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, जब तारे को बैरी मीत तब लग नेचल नाही चेत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा चित एकाग्र चित हो ही नहीं सकेगा जब तक तेरे मन में कोई मित्र है, कोई शत्रु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर वैद्य ने सवाल किया, पातशाह ठीक है, मानता हूं मैंने शारीरिक तल पे किसी का बुरा नहीं किया, मांत्रिक तल पर नहीं किया, बौद्धिक तल पर नहीं किया, हो सकता है मानसिक तल पर किया और मैं सोचता हूं किसी का बुरा। अब इससे छुटकारा कैसे पाऊं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि इसी में ही दवाई है, जो बात है इसी में ही है। नाम जप कर, नाम जप जप कर इन 5 पर काबू पाया जा सकता है, 5 तरह की सोच पर। ध्यान देना साथ संगत जी। हमें बीमारी का पता चल गया, अभी यहाँ पर दवाई बता रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहते हैं नाम जब जपेंगे, नाम जप जप कर ये मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है। किसी का बुरा सोचना मन बंद कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद जब ये 5 तरह के बुराई हमारे अंदर से निकल जाती है किसी के प्रति, उसके बाद जब नाम जपा जाता है तो मन शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से पकड़ना, अगर पकड़ में ना आए तो एक बार वापस दास बता दे। पहले नाम जपेंगे तो ये 5 बुराई हमारे अंदर से निकलेंगी। 5 तरह के जो हम हिंसा करते हैं, 5 तरह की हिंसा है ये 5 तरह की हिंसा नाम जपने से हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ये खत्म हुई उसके बाद जब नाम जपा मन शांत हो जाएगा।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, गुरु ने कृपा की, हमें इस रास्ते पे चलाया है। इसे कहते परमार्थ का रास्ता, जहाँ पे हम बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी रास्ता जहाँ खत्म होता है, परमार्थ का शुरू होता है। ये बातें दास इसलिए बता रहे हैं, अभी आगे चल के हमारे आगे ये सब आएंगी। ये बातें, ये एक एक पड़ाव है जो हमें तंग करेगा। हमें ज्ञान होना चाहिए इसे पार कैसे पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन लोगों को शौक है परमार्थ के राह पे आगे बढ़ने का, उनके लिए बातें अनमोल है, अनमोल। फिर सवाल मन में नहीं उठेगा, पहले ज्ञान होगा, सवाल का जवाब सामने होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वाणी की पंक्तियां जो पढ़ रहे हैं, मन अपने थे बुरा मिटाना, अपने मन से बुराई निकाल दे। हर एक किसी के लिए भी मन में बुराई मत रख। पेख है सगल सृष्ट साजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब अपने लगे, कोई भी पराया ना लगे, बुराई निकल जाए मन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 तरह की हिंसाओं में सबसे श्रेष्ठ है मानसिक हिंसा, क्योंकि आदमी को पता भी नहीं चलता कब कर बैठा। वो वैद्य कहता है मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी सोचते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर अगर ध्यान से वाचेंगे मन ही मन में कितनों का बुरा कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे दुनियावी तल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ते हैं ना, नाम सिमरन में मन नहीं लगता। हम अक्सर सवाल पूछते हैं मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये सारी बातें हैं, ये कड़ियां हैं, एक एक पे काबू करते जाएंगे, मन लगता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नोट कीजिए, जब किसी से झगड़ा हुआ हो, मन कल्पना क्लेश में हो, मन नहीं लगता सिमरन में। मन कब लगता है? जब मन शांत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन में किसी की बुराई चल रही है कि फलाने का बुरा हो जाए, फलाने का बुरा करना है, फलाने का ऐसा हो जाए, मन नहीं जुड़ेगा नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। देखे सगल सृष्ट साजना, सकल श्रेष्ठ साजना, देखे सगल सृष्ट साजना। सकल श्रेष्ठ साजना। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे ज्ञान की एक और बात कही थी। कहने लगे नाम जप जप कर ये 5 तरह की हिंसा तेरे मन से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब तू नाम जपेगा, नाम जपने के बाद हृदय से कहेगा नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्वत दा भला सबका भला। कहते थे जब तू भीतर से कहेगा तेरा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कई बार सोचता हूँ सच में धन गुरु नानक कितनी कमाल की अरदास बनाई है कि अगर समझो अरदास करके कोई आदमी, कोई मूर्ख है, समझो कोई कलेश में तप, किसी से परेशान है, किसी से दुश्मनी है, यहाँ पे खड़ा होकर अरदास करे कि उसका बुरा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सामने वाला रोड पे आ जाए, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसे लोग होते हैं, सच में होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास आए हैं 1-2 बार तो
कि ऐसा कोई नाम बताओ जिससे सामने वाला रोड पे आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना तो था मैंने, देख भी लिए ऐसे लोग। अरदास कितनी कमाल की है। कोई खड़ा रह के यहाँ पे अरदास करे गुरु के आगे कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, और फिर आखिर में क्या कहेगा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबका भला हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब में वो भी आ गया जिसका बुरा बोला है। ये अरदास ऐसी है कि सबका भला ही करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, तिस दा बुरा क्यों होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर के पास जाओ, कहो शुगर है, कंट्रोल में नहीं आ रही, तो क्या कहेगा, कहीं मीठा तो नहीं खाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा खाना छोड़ो, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। गुरु के पास जाकर कहो कि दुख दूर नहीं हो रहे, गुरु के पास जाके कहो कि दुख दूर नहीं हो रही, गुरु पूछेगा कहीं दूसरों को दुखी तो नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तू दूसरों को दुखी कर रहा है, तेरे दुख कंट्रोल में नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है साथ संगत। कल भी यही था ना, जो बोएंगे वो काटेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दूसरे का बुरा सोचो और वो तुम्हारा बुरा न सोचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने 2 साल पहले ये प्रकरण लिया था, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत, जिसमें ये बड़े सारे प्रमाण दिए थे मैंने। ये प्रकरण निकाल के सुन लेना, पर का बुरा ना राखो चित। इसमें पूरा डिटेल में ये बताया गया था, सिद्ध करके, वाणी के आधार पर भी और दुनियावी प्रमाण भी, कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के भी बारे में, ऑटोमेटिकली वो भी हमारे बारे में बुरा सोचता है। ये कुदरत का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके बारे में बुरा सोचो और वो आपके बारे में अच्छा सोचे। वो केवल एक संत कर सकता है, आम आदमी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसमें एक दृष्टांत छोटा सा बता के 10 आगे बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया इस बात को समझने के लिए कि सच में ऐसा होता है। क्लास में गए, क्लास में सब बच्चों से कहा एक कागज फाड़ो अपनी किताब में से और उस बच्चे का नाम लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं। सब बच्चों ने नाम लिखा और जब उन कागजों को खोला गया तो अगर राजू ने संदीप लिखा था तो संदीप ने भी राजू लिखा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक कागज को खोला गया, मैच किया गया, जिसने जिसके बारे में बुरा सोचा उसने उसका नाम लिखा। एक लड़के ने किसी का नाम नहीं लिखा था कि मुझे सब पसंद है, कोई बुरा नहीं, उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। तुम्हें कभी दुख नहीं होगा अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोचोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम दुखी हैं इसका मतलब बुरा सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। पराया छिद्र अटकले, पराया छिद्र अटकले, अपना अहंकार वधावे, अपना अहंकार वधावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी समझाते हैं, पराया छिद्र अटकल है। अगर तू दूसरों को गुनाहों को देखेगा, हमारी जो आदत है दूसरों के गुनाह गिनते रहते हैं बैठ के, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। गुरु रामदास जी कहते हैं, जब तक तू ये करेगा, दूसरों के गुनाह देखेगा, पराया छिद्र, दूसरे का छेक देखकर उसमें अटक जाएगा कि ये गुनहगार है, उसके अवगुण गिनेगा, कहते हैं तेरे अवगुण खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे गुण खत्म हो जाएंगे, जो तेरे भीतर गुण है वो गुण खत्म हो जाएंगे, तुझमें अहंकार भर जाएगा और वही अवगुण जो तू दूसरों में देख रहा है कल तेरे में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझिए बात को। सारे अवगुणों की जड़ क्या है? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार में आदमी को दूसरे के अवगुण दिखते हैं, अपने नहीं। गुरु रामदास जी कह रहे हैं,
पराया छिद्र अटकल है, अपना अहंकार वधावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, हमारी अवस्था उस गंदी मक्खी की तरह है जो सारा शरीर स्वस्थ है, उस पर ध्यान नहीं देती, जहां पे जख्म है वहां जाके बैठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी में 1000 गुण हो पर एक अवगुण है, उसे पकड़ कर बैठ जाएंगे। हमारी मन स्थिति वैसी हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अब गुरु की हजूरी में आके बैठे गुरु नानक के चरणों में, यहाँ पर मन स्थिति बदलनी चाहिए। गुरु को अरदास करो, पातशाह मेरे हृदय से बुराई निकाल दे, तू निकाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन अपने ते बुरा मिटाना, बुरा दुश्मन पता ही नहीं कौन है। आइए 2 पंक्तियां पढ़ ले। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। पेखे सगल सृष्ट साजना, सगल श्रेष्ठ साजना, देखे सगल सृष्ट साजना। सगल श्रेष्ठ साजना। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। क्या अवस्था है साथ, कैसा रस होगा इस अवस्था में। ये अवस्था पाई थी ना भाई कन्हैया जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं, मैंने किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया, मैंने तो आपको पानी पिलाया है, आप मांगते हो मैं आपको पिला देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुश्मन दिखाई नहीं देता, हर एक में गुरु दिखाई दे रहा है, हर एक में। दुश्मन में भी गुरु देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्त में भी दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत देखो, कब पाएंगे। महापुरुष वचन करते थे, बुराई ऐसी चीज है जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, उसका बुरा हो ना हो, तुम्हारा अपने आप पहले हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे माचिस का उदाहरण देते थे, माचिस की तीली दूसरे को जलाने के लिए जलती है, मोमबत्ती वो जला पाए या ना जला पाए, खुद तो जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आदमी किसी पे कीचड़ फेंकता है, उस पर कीचड़ पड़े ना पड़े, उसके हाथ तो कीचड़ से भर गए फेंकने वाले के। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं मन में, उसका बुरा हो ना हो, हमारा बुरा तो हो ही गया। क्यों? वाणी कहती है, अगर तू बुरा सोचेगा तू दुखी होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं सोचेगा दुखी नहीं होगा। हम जब किसी का बुरा सोचते हैं, अपने आप को दुखी तो पहले कर ही लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है इस्लाम की, इस्लाम धर्म की घटना है, बड़े ही कमाल की है ये घटना। युद्ध चल रहा है खैबर में, यहूदियों और हजरत अली युद्ध कर रहे हैं, यहूदियों में और मुसलमानों में युद्ध चालू है खैबर की धरती पर। हजरत अली खुद युद्ध कर रहे हैं, एक यहूदी से उनकी तलवारबाजी चल रही है, युद्ध चल रहा है। हजरत अली ने उसकी तलवार गिरा दी हाथ से
और उसको भी धरती पर गिरा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे तलवार से उसका कत्ल करने लगे, उस यहूदी ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना बात को। हजरत अली ने उसे हरा दिया। जैसे ही मारने लगे, तलवार भी उसकी गिरा दी, उसे भी धरती पर गिरा दिया। अब आखिरी वार करना था उसे खत्म करने के लिए। तो उस यहूदी ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया, और जब थूक दिया हजरत अली रुक गए, तलवार नहीं चलाई, पीछे हट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो यहूदी बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बात हुई भाई, मारते मारते रुक गए, उल्टा मैंने थूका है। गुस्से में तो मार देना चाहिए था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया हजरत अली से, तलवार क्यों नहीं चलाई? कहने लगे इसलिए नहीं चलाई, तूने थूक दिया मुंह पर। तो वो कहने लगा हाँ ठीक है, थूक दिया मैंने, इसलिए थूका के एक ही बार में खत्म कर दो, गुस्सा आ जाए आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ज्यादा तड़पना ना पड़े, एक ही आप गुस्सा आ जाएगा, क्रोध में जोर से वार करोगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मरना तो था ही। हजरत अली कहने के इसीलिए मैं पीछे हट गया क्योंकि मुझे क्रोध आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। जिसके मन में किसी के बारे में बुरा नहीं होता, उनके विचार देखो कहां पहुंचते हैं, क्या अवस्था है। हजरत अली कहने लगे मैं पीछे इसलिए हट गया क्योंकि मुझे क्रोध आ गया। तो फिर हैरान हुआ यहूदी, कहने लगा क्रोध आ गया तो मार देना था ना, मारा क्यों नहीं? हजरत अली कहने लगे इसलिए नहीं मारा क्योंकि मैं तुझे यहाँ पर खत्म करने इसके लिए नहीं आया कि तू मेरा दुश्मन है। मैं यहाँ पर तुझे इसलिए मारने नहीं आया हूँ कि तेरा मेरे से कोई जाति बैर है। तू जुल्मी है, जुल्मी की तरफ से आया है, जुल्मी का साथ दे रहा है, इसलिए तुझे मारना पड़ रहा है। पर अब मुझे क्रोध आ गया, जब तूने मेरे मुंह पर थूका मुझे क्रोध आ गया, अब मैं तेरी हत्या कर देता तो ये पाप होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाता, क्रोध में मार नहीं सकता मैं तुझे, शांत होकर मार सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। युद्ध में भी मारने वाले के प्रति भी द्वेष भाव नहीं है, उसकी बुराई नहीं है मन में, कत्ल कर रहे हैं और उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। दर्शन करते हो आप हजूर साहब जाकर, तीर पर सोना लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है तीर पर, हर तीर पर सोना लगा होता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। उनसे पूछा गया क्यों लगाते हो इतना सोना? कहने लगे ताकि अगर सामने वाला मर जाए तो ये सोना उसके दफन कफन के काम आ जाए, और अगर जख्मी हो जाए तो उसके इलाज के लिए सोना काम आ जाए जिसे मार रहे हैं। तो कहा कि वो तो दुश्मन है जिसे मार रहे हैं, उसके बारे में क्यों सोचे? गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे मेरा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, किसी से जाति बैर नहीं, सामने वाला जुल्मी की तरफ से आ रहा है इसलिए मारना पड़ रहा है, मजबूरी है, हम नहीं मारना चाहते। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तीर पर सोना लगाते हैं, अगर जख्मी हो जाए तो उसको वो अपनी दवा दारू कर ले, अपना इलाज कर ले उस सोने से, और मर जाए तो उसके दफन कफन के काम आ जाए वो सोना। मार रहे हैं पर साथ में दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराई नहीं है मन में। देखिए युद्ध चल रहा है, मार रहे हैं पर बुराई नहीं है मन में। यहाँ पर ना हमारा युद्ध चल रहा है, ना हमसे किसी से जायदाद बांटनी है, तो भी हर एक का बुरा सोचते हैं बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी ने धोखा दिया होता है, किसी ने कुछ किया होता है, हम गुस्से को पालते हैं, अंदर ही अंदर पालते हैं, उसके बारे में सोचते हैं बुरा, पर उसका बुरा हो ना हो अपना तो हो ही जाएगा भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक दूसरे का बुरा सोचेंगे हमारा भला कैसे होगा, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां ये भी पढ़ ले एक बार। पर का बुरा न राखो चित, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चित, तुमको दुख नहीं पाए। पर का बुरा न राखो चित, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा
न राखो चीत, पर का बुरा ना राखो चीत, ना राखो चीत राखो चीत, पर का बुरा ना राखो चीत, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाएंगे, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। जाके सिमरन सुख निवास, पै कल्याण दुख होवत नास, जाके सिमरन सुख निवास, पै कल्याण दुख होवत नास, पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएंगे, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बॉम्बे में एक संस्था है, एक कमाल की घटना है, प्रैक्टिकल घटना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बॉम्बे में एक संस्था है बॉम्बे में जो एक्वा प्रेशर से लोगों का इलाज करती है। जो उनकी मुखी है वो बता रही है, अभी अभी की घटना है। इसका लिंक है यूट्यूब के ऊपर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या बताती है वो मुखी, जो कंसल्ट करती है पेशेंट्स को, और एक टीम है जो एक्यूप्रेशर करती है। लोगों का बहुत विश्वास है उसके ऊपर कि ये हाथ लगाएगी तो ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मेरे घर पे एक पत्रिका आई जिसमें लिखा हुआ था कि दूसरे के बुरा मत सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि निंदा कितनी बुरी चीज है, बड़ी ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की चीज है। ये वाणी तो कहती है, पर हम क्या है ना, कलयुगी जीव हैं, वाणी पे विश्वास कम, प्रैक्टिकल पे ज्यादा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होना तो ये चाहिए था, गुरु ने कह दिया बात खत्म। गुरबानी समझाने के लिए, गुरबानी पे विश्वास लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं कि मेरे घर में पत्रिका है, मैंने उसे पढ़ा कि निंदा कितनी बुरी चीज है। किसी महापुरुष ने लिखा हुआ था कि अपने कर्मों की वजह से हमें दुख भोगना पड़ता है, अपने कर्मों की वजह से बीमारियां, बहुत कुछ आता है, खुद को झेलना पड़ता है। पर जो निंदा करते हैं दूसरों की बीमारियां अपने सर पे लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अपने नहीं भुगतने जा रहे, दूसरे की निंदा करके दूसरे के पाप अपने सर पे क्यों लेते हो? निंदा इतनी बुरी चीज है। कहने लगे मैंने पढ़ा और रख दिया, जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं। सुबह चले गए अपने, जहां पर लोग आते हैं लाइन लगाकर एक्यूप्रेशर कराने। कहने लगे एक लेडीज आई, कहने लगी मुझे आपसे एक्यूप्रेशर कराना है।
वो कहने लगे भाई मैं तो सिर्फ कंसल्टेंट करती हूँ, पहले करती थी एक्यूप्रेशर, अभी जो टीम है वो करेगी, मैं बता दूंगी उनको। कहने लगे नहीं, मेरे मन का भाव है कि आप करो, आपका हाथ लगने से मैं ठीक हो जाऊंगी। बिहार से बोलिए दान गुरु नानक। कहने लगी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा तकलीफ है। डॉक्टर कहता है कि इलाज चालू कर दिया, डॉक्टर ने दवाई देनी शुरू की है और कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बेड पे ही रहोगी सारी जीवन, चल नहीं पाओगे। बिहार से बोलिए दान गुरु नानक, दान गुरु नानक। तो उस पर तरस आ गया और वो कहने लगी, मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ एक्यूप्रेशर। अंदर चलेगी। उसका कहना था कि जब हम वो पॉइंट्स दबाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसलिए बातों में लगाती है पेशेंट को। उसे बातें करनी शुरू की ऐसे ही, ताकि उसका ध्यान बदल जाए पॉइंट्स दबाते वक्त। तो उसको पूछा भाई कितने घंटे खड़े रह के काम करते हो? वो कहने लगी 2-2.5 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है किचन में, बच्चों के लिए टिफिन, घर वाले के लिए टिफिन। तो ये पूछती है कि भाई इतने देर नहीं खड़ा रहा करो, आधा 1 घंटा करके आराम किया करो, फिर आधा घंटा करके। कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता। और कहते कहते उसने अपनी सास की निंदा करनी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। कि वो सास कोई मदद करती नहीं, बैठी रहती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, ये वो सास पुराण कहते शुरू कर दी उसने। प्यार से बोलिए दान गुरु नानक। सास पुराण पता ही होगा लेडीज को तो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगी अचानक मेरे मन में ख्याल आ गया कि कल ही मैंने पढ़ा है कि निंदा करने से दूसरे के दुख लेने पड़ते हैं अपने सर पर, और ये अपने सास की निंदा करते जा रही है। कल ही मैंने पढ़ा था आर्टिकल, आज मेरे सामने पेशेंट आ गया जो निंदा कर रहा है सास की। और मैं हैरान इस बात पे थी कि ये जवान है, इस उम्र में घुटने खराब नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जवान है, इस उम्र में इसके घुटने खराब कैसे हो गए? ये तो एज के बाद एक फैक्टर आता है, चला नहीं जाता। तो कहे मैंने उससे कहा मैं तेरे इलाज, मेरे मन में आया कि मैं प्रैक्टिकल करके देखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डॉक्टर के मन में आया कि मैं प्रैक्टिकल करके देखूं। कहने लगे मैंने उससे कहा कि मैं तेरे पॉइंट्स तब दबाऊंगी एक्यूप्रेशर के अगर तू मेरी एक बात मानेगी। वो कहने लगी क्या? कि सास की निंदा नहीं करेगी तू। वो कहने लगी ये हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा स्वभाव बन चुका है, अपनी बेटी आती है तो किचन में खाना बनाने आ जाती है, मेरे लिए सब्जी भी नहीं काटती। वो फिर शुरू हो गई। वो कहने लगी अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो मेरी टीम तेरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएगी, मैं नहीं जा रही हूं। तो उसने पकड़ लिया, ठीक है मैं कंट्रोल करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने कंट्रोल नहीं, वादा करके जा तू 3-4 दिन, जब तक मैं तेरे कर रही हूं तेरा इलाज, 3-4 दिन तक कम से कम तू निंदा नहीं करेगी सांस की। तो कहने लगे ठीक है वादा करती हूँ नहीं करूंगी। कहने लगे मैंने जो 4-5 पॉइंट्स दबाने थे दबा के उसे भेज दिया। 3-4 दिन के बाद मैंने उससे पूछा कैसा है, तबीयत कैसी? कहने लगी घुटने में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मन बड़ा शांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बड़ा शांत है, बड़े सालों बाद मैं चैन की नींद सोई हूं, क्योंकि मैंने तो उसने कहा क्यों दिनचर्या में कोई अंतर डाला है? कहने कोई अंतर नहीं डाला। कहते सास की निंदा, कहती यहां तक आती है निंदा पर रोक देती हूँ क्योंकि आपने कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बुराई नहीं कर रही सास की, ये बड़ी लंबी कथा है, मैं बस शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको। मैं निंदा नहीं कर रही, निंदा नहीं की, चैन की नींद आई 4 दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डॉक्टर कहती 14 दिन तक इसने सांस की निंदा नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 दिन तक मैं इसके एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाती रही। 14 दिन के बाद इसका डॉक्टर का इलाज भी चालू था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा 2 महीने के अंदर अंदर। ये डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट दिखाने। डॉक्टर कहते रिपोर्ट्स में तो सब पॉजिटिव है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर तुम जैसे चलकर आई हो लगता नहीं तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे घुटने ठीक हो रहे हैं और तुम जहां से भी जो एक्यूप्रेशर कर रही हो वो कराती रहो वो ट्रीटमेंट, क्योंकि वो कामयाब हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये डॉक्टर कहती है मैं हैरान हो गई, मेरे सामने कहने लगी मैं ये बात दावे से कहती हूँ मेरे पास आ जाओ। उसने फोन नंबर दिए हुए। कहती ये फिर मैंने वहां का एक फिक्स नियम बना दिया है, अब ट्रीटमेंट जिसने करानी है पहले निंदा बंद करे। कहने लगी हमारा रिजल्ट पहले 100 में से
10-12 पेशेंट ठीक होते थे, अब 100 में से 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी। सिर्फ बुरा सोचना बंद किया, निंदा बंद की, वही एक्वाप्रेशर है। सिर्फ किसी का बुरा सोचना बंद किया, निंदा करनी बंद की। उसने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, लोगों को सामने खड़े करती है जिन्होंने ये किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो कह रही है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। बीमारी तक ठीक हो रही है अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते, निंदा नहीं कर रहे, और क्या चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएंगे। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। तुमको दुख नहीं पाए मीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। साथ संगत जी, एक बात बड़ी ध्यान से समझना, ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, जो चल रहा है, ये बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, छोटा लेवल है ये, कि दूसरे का बुरा नहीं सोचना। हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं। गुरु महाराज हमसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि दूसरे का बुरा मत सोचो। गुरु साहब जी हमसे पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि जो हमारा बुरा सोचता है, जो हमारा बुरा करता है, उसका भी भला करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी सारे इंटेलेक्चुअल जहाँ की सोच खत्म हो जाती है, वहां से वो शुरू होती है। फरीदा बुरेदा भला कर, जो तेरा बुरा कर रहा है उसका भला कर। बताओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो जान से मार दो कोई बुरा करे तो। फरीद जी कह रहे हैं कि भला कर, वाणी में अंकित है। बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, हंडाए मन ना, मन में भी गुस्सा मत कर। हंडाना किसे कहते हैं? बोलते ना इस कपड़े को बहुत हंडा लिया, बहुत देर पहन लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पालते हैं गुस्से को, मन में हंडाते रहते हैं। किसी ने बुरा कर दिया, उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं। पाछा के तू अगर ये तू कर ले, वाणी कह रही है, फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। अगर तू ये कर ले, देही रोग ना लग गई। फल देखिए, वाणी कह रही है, तेरी देह में रोग नहीं लगेंगे। पल्ले सब किच पाए, तुझे जो चाहिए वो संसार में तुझे मिल जाएगा, जो तुझे चाहिए। पर ये काम कर ले, क्या? जो तेरा बुरा करे उसका भला कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ये वचन किया करते थे, कहते थे बुरे नाल सब बुरी करन दे, माफ करन कई सियाने। बुरे के साथ सब बुरा करते हैं, कोई सियाने होते हैं जो माफ कर देते हैं, पर बुरे नाल फिर नेकी करनी, ये गुरु नानक जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो बुरा करे उसका भला, जो पत्थर मारे उसका भला सोचना, जिसने थूक फेंकी हजरत अली उसका भला सोच रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीज मार रहे हैं, पर सोना लगा के मार रहे हैं, मारने आ रहा है वो, पर उसके बारे में सोच रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो लेवल पर तो हम पहुंच ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता, पर कम से कम ये लेवल तो बना लें कि पर का बुरा न राखो चीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एमए की बात ना सही, फर्स्ट क्लास की बात तो बना लें, पहली क्लास में तो चढ़ जाए, किसी का बुरा सोचना बंद करें। मन में आती है बुराई, उसी वक्त अरदास पातशाह बख्श लो, उसी वक्त नाम जपना शुरू, ये बात बचा ले, ये नाम ही बचा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको खींचो मत। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए, हर एक अवगुण से छूटा जा सकता है, एक नुक्ते को अपना लो, जहां से मुड़ता है मोड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जहां से मुड़ता है मोड़ लो। मुड़ता है मतलब क्या? समझो निंदा शुरू हो गई, ध्यान आ गया निंदा नहीं करनी है, वहीं से रुक जाओ। आज 10 मिनट बाद रुके हैं, कल 5 मिनट बाद रुकेंगे, 1 मिनट बाद रुकेंगे, एक दिन आएगा मन में ख्याल आएगा, मुड़ जाएगा मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर रुक जाएं, शुरू करें। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जहां से मुड़ता है वहां से मोड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा कि मन में ख्याल भी आएगा, उसी वक्त मन मुड़ जाएगा, क्योंकि
एक्सपीरियंस हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। तुमको दुख नहीं पाए मीत। अनद करो प्रभु के गुण गाओ, सतगुर अपना सद सदा मनाओ। आनंद करो प्रभु के गुण गाओ, सतगुर अपना सदा मनाओ। सतगुर का सच शब्द कमाओ, फिर कर बैठे प्रभु अपना पाओ। सतगुर का शब्द कमाओ, बेकार बैठे अपना पाओ। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। तुमको दुख नहीं पाई मीत। हर हर तंत मंत गुर देना, एह सुख नानक अन दिन चीना। हर हर तन अंत गुर दीना, ये सुख नानक अन दिन जीना। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं आए मीत। तुमको दुख नहीं आए मीत। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए मीत।
सगल सृष्ट साजना, है सकल श्रेष्ठ साजना। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो, आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन के रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं। जो पर जाओ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा, यस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोए राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंधु दुष्टन के हंदा। हो पुरी ततर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा। काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रगासा। सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो। वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जमन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो। देव दैत जक्षण उपजायो। आद अंत के अवतारा। सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी। सकल प्रजा जिने आप सवारे। सेवकन को शिव गुण सुख दियो। सकरन को पल मोहब्बत कियो। कट कट के अंतर की जानत। भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंजर अस्तोला। सब पर कृपा दृष्ट कर भोला। संतन दुख पाए ते दुखी। सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछान। कट कट के पट पट की जान। जब उद करक करा कर तारा। प्रजा तर्क तब दे अपारा। जब वह करक करत हूँ कब हूँ। मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार। आप आपने मोजे उदार। तुम सब ही ते रहत निरालम। वेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब। आद अनिल अनाद असंभव। तांका मूढ़ उचारत भेदा। को पेव न पापद भेदा। तांको कर पान अनुमानित। महामूढ़ कछ भेद न जान। महान देव को कहत सदा शिव। निरंकार का चीनत न पेव। आप आपनी बुध है जेती। तो पेन पेन तो तेती। तुमरा लखा न जाय पसारा। कैबज सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा। रंग पयोराव कई कोपा। अंडज जेरज से तज कीनी। कुछ खान बहो रच देने। कहूँ फूल राजा हव बैठा। समट प्यो संकर बैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव। आद जुगाद स्वरूप से अम्बव। अब रक्षा मेरी तुम करो। असिक संगरो। दुष्ट जिते उठवते उत्पाता। सगल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव सरणी पर। इनके दुष्ट दुखत हव मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे। इनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार ते है। आके काल निकटने है। रक्षा होई ताए सब काला। दुष्ट अरिष्ट डरे तत्काला। कृपा दृष्ट संजाय निहरो। आके तापत नगमो हरो। और तो सिद्ध कर्म सब होई। दुष्ट छा छह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा। पास ते ताए उमारा। जिन
नर नाम तिहारो कहा। दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग केत में शरण तिहारी। आपो हाथ दे ले उबारी, सर्व डोर मोह सहाय। दुष्ट दोख ते ले बचाई, खड़ग केत में शरण तिहारी। आपो हाथ दे ले उबारी, सर्व टोर मोह सहाय। दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा। आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुरु का पाया सहज से की मन वजिया वाधाया। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आइयां। आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। मन मेरा तू सदा रो हर नाले। हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। साचे साहिबा क्या नहीं करते रे। करता तेरे सब कुछ है जिते सो पावे। तेरी नाम मन वसावे, नाम दिन पे मन वस्या बाजे शब्द मेरे। कहे नानक सच्चे सैल क्या नहीं घर तेरे। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। करसान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पूजाइया। साचा नाम मेरा आधारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंज शब्द घर सभागे, घर सभागे शब्द वाजे कला जी करतारियां। पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया। मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे। पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रहा भरपूरे। बिन वंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद धुरे। सलो पवन गुरु पानी पीता। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर। करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया। जिन्नी नाम ध्याया। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ओ वाहेगुरु 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 वाहेगुरु।
मशक्कत काल। नानक ते मुख ऊने खेती छोटे नाल। बोलो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय।
सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय गुरु जी की।